Have a quick recap of this chapter should wizard hit mommy. So there are a few major characters in this chapter should wizard hit mommy. One is Jack, father. Joe is the daughter, 4 years daughter of Jack and Claire, and Roger is a creature, and the storyline revolves around this creature Roger is always having some problem, and the creature name changes. Sometime it is like chipmunk, sometime it is Roger fish, or sometime it is squirrel, but the storyline remains common that Roger is facing some problem, and with this problem he goes to a wizard, and wizard resolves his problem by charging some money, and money always gets short, and with his magical tricks, wizard tell them from where to get the money which got short, and again the problem is resolved. Roger plays with his friends, and train whistle can be heard, and then father arrives from Boston and they all have a supper. So this is the common storyline, and that's the outline of each story all the time. And here the story of Roger skunk. Joe chooses a skunk to be the hero of the story, and father revolves the story around this Roger skunk, that is the bad smell of the skunk. No other animal plays with him, and they run away from him, leaving the skunk crying as usual, and the skunk goes to the owl, and the owl tells him to go the old wizard, and then Roger skunk goes to the old wizard, and wizard lives in a little white house across the swamp over a little river, and agrees to help him, and then ask Roger what he should smell like, and he would like to smell like, and then Roger wishes to smell like roses. A wizard takes out his magic wand and mutters magic words, and suddenly Roger smells like roses. Wizard demands 7 pennies, and skunk has only 4, and wizard tells him to go to a magic well and find the 3 pennies he needs, and then Roger skunk finds them and pays the wizard fee. And then here now Roger smells sweet, and all animals come to him, and they played him together. It gets dark, and Roger too goes home and have dinner with his father and mother. So let's now start with the story where I left. He paused as a ramped expression widened out from his daughter's nostril, forcing her eyebrows up and her lower lip down in a wide, noiseless grin, an expression in which Jack was startled to recognize his wife feigning pleasure at cocktail parties. और जब रॉजर स्कंक की स्मेल रोजेस में कन्वर्ट हो गई तो जो बहुत ही खुश हो गई, वो खुशी जो क्लेयर को कॉकटेल पार्टीज़ में फ़ील होती थी, और उसके चेहरे पे जो है वो ग्रिन होती थी, जो एक्सप्रेशंस होते थे वही सेम एक्सप्रेशंस अभी जो के चेहरे पर जैक ने फील किया. एंड ऑल ऑफ अ सडन ही विस्पर्ड द होल inside the wizard house was full of smell of roses. Roger fish cried, and the wizard said very cranky, that will be 7 pennies. और पूरा कमरा जो है रोजेस की स्मेल से भर गया, और जैक के मुंह से रॉजर फिश निकला, और यहाँ पर ही जैक को टोकती है जो, डैडी व्हाट, रॉजर skunk, you said Roger fish. Yes, skunk, you said Roger fish. Wasn't that silly? Very silly of you, stupid old daddy. Where was I? Well, you know about the pennies. अब 7 pennies की डिमांड करता है, बोलते बोलते रॉजर स्कंक को रॉजर फिश बोल देता है, और जो को बड़ा मज़ा आता है, अपने फादर को डांटती है, स्टूपिड बुलाती है, सिली बुलाती है कि आपने रॉजर स्कंक को रॉजर फिश कैसे कहा. और जैक जो है अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करता है. से इट ओके, रॉजर स्कंक सेड, but all I have is 4 pennies, and he began to cry. Joe made the crying face again. अब जो है पैसे कम पड़ गए, 7 pennies की डिमांड है और 4 pennies हैं तो 3 pennies कम हैं. अब जो है फिर से ट्रबल में फंस गया रॉजर स्कंक, और जो का भी चेहरा उसी तरीके से रुआका सा हो गया. बट दिस टाइम without a trace of sincerity, this annoyed Jack. Downstairs some more furniture rumbled. अब नीचे जो है क्लेयर काम करती जा रही है, और फर्नीचर की साउंड जो है
जैक को कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ करा रही है कि उसे क्लैर के साथ होना चाहिए, जो कि 6 मंथ्स प्रेग्नेंट है, और उसके साथ उसका हाथ बटाना चाहिए क्योंकि वो उनका थर्ड बेबी, और इस सिचुएशन में उसे इतना काम नहीं करना चाहिए और इतने भारी फर्नीचर नहीं उठाना चाहिए या हिलाना चाहिए। बट जो है उसको नींद ही नहीं आ रही है, वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होती चली जा रही है स्टोरी में कि नींद का तो नामो निशान ही नहीं है, और जैक को ये सब चीज़ें बहुत ही इरिटेट कर रही हैं। So the wizard said, "Oh, very well. Go to the end of the lane and turn around 3 times and look down the magic well, and there you will find 3 pennies. Hurry up." So Roger Skunk went to the end of the lane and turned around 3 pennies, and there in the magic well were 3 pennies. So he took them back to the wizard and was very happy and ran out into the woods, and all the other little animals gathered around him because he smelled so good, and they played tag, baseball, football, basketball, lacrosse, hockey, soccer and पिकअप स्टिक्स। अब जो है जो 3 पेनीज़ कम पड़ गई थी, और विज़र्ड ने बताया कि वो 3 पेनीज़ जो हैं वो वेल के पास मिलेंगी, और वो वैसा ही हुआ। रॉजर स्कंक ने वो 3 पेनीज़ लाके विज़र्ड को दी और खुशी खुशी वो वापस अपने जंगल की तरफ चला गया, और बहुत सारे क्रीचर्स, बहुत सारे एनिमल्स उसके आसपास इकट्ठा हो गए क्योंकि वो अब अच्छी स्मेल वाला हो गया था। उसकी खुशबू से, रोज़ेस की खुशबू उन सबको अट्रैक्ट कर गई, और वो सब उसके साथ खूब खेले, बहुत सारी गेम्स खेली, पूरी दोपहर शाम तक वो गेम्स खेलता ही रहा। अलग अलग गेम्स खेली, टैग खेला, बेसबॉल खेला, फुटबॉल खेला, बास्केटबॉल खेला, लेक्रोसे, हॉकी, सॉकर एंड पिकअप स्टिक्स। और जो को नहीं मालूम था कि पिकअप स्टिक्स कौन सी गेम होती है, और वो पूछती है अपने पापा से, व्हाट्स पिकअप स्टिक्स? इट्स अ गेम यू प्ले विद स्टिक्स लाइक द विज़र्ड मैजिक वॉन्ड काइंड ऑफ। और कहते हैं कि एक गेम है जो स्टिक्स से खेली जाती है, जैसे विज़र्ड खेलता है अपनी वॉन्ड से, या विज़र्ड यूज़ करता है अपनी वॉन्ड, मैजिक वॉन्ड। फादर कहता है हाँ, काइंड ऑफ। एंड दे प्लेड games and laughed all afternoon, and then it began to get dark and they all ran home to their mommies। और अंधेरा हो गया, सब अपनी अपनी मम्मी के पास वापस चले गए, और रॉजर भी अपने घर की तरफ वापस हो लिया। जो was starting to fuss with her hands and look out of the window। अब ये बात जैक को बिल्कुल पसंद नहीं आई कि अब हैप्पी एंडिंग हो गई, तो उसे जो को ऐसे लगा कि स्टोरी ख़त्म होगी, और उसने अपने पापा की तरफ कंसंट्रेट करना बंद कर दिया और विंडो से बाहर देखने लगी। She thought the story was all over. Jack didn't like women when they took anything for granted. He liked them apprehensive, hanging on his words. Now Joe, are you listening? और जो है वो जब वो बाहर देखने लगी तो जैक को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो कहता है कि वुमेंस की ये क्वालिटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो चीज़ें टेक इट फॉर ग्रांटेड लेती हैं, और ज़्यादातर जो वुमेंस है वो इस चीज़ में ही बिलीव करती हैं कि हैप्पी एंडिंग, और जब हैप्पी एंडिंग हो गई तो उसे लगा कि स्टोरी ख़त्म हो गई जो को। और ये बात जो है फादर को बिल्कुल पसंद नहीं आई कि वुमेंस जो है वो टेक इट फॉर ग्रांटेड क्यों ले लेती हैं, हमेशा वो इसी चीज़ को क्यों लेती हैं एक्सेप्टेंस में कि हमेशा जो एंडिंग होगी वो खुशी वाली होगी। और इसी बात पर वो इरिटेट होते हुए उसने अपनी डॉटर को बोला, नाउ जो आर यू लिसनिंग? उसको पूछता है कि तुम मुझे सुन रही हो? येस, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, रॉजर स्कंक्स मॉमी सेड। व्हाट्स दैट ऑफुल स्मेल? जो कहती है व्हाट? अब रॉजर स्कंक की मम्मी को वो रोजेस की स्मेल नहीं पसंद आई और उसने उसको स्मेल को ऑफुल बोला। और जैक ने जब ये स्टोरी नरेशन के टाइम पे बोला तो एकदम से सरप्राइज हो गई जो भी कि क्या मम्मी जो है उसके अकॉर्डिंग रोजेस की स्मेल को जो है वो ऑफुल बोल रही है। एंड रॉजर स्कंक सेड, इट्स मी मॉमी, आई स्मेल लाइक रोजेस। एंड शी सेड, हु मेड यू स्मेल लाइक दैट? एंड ही सेड, the wizard। And she said, well, of all the nerve, you come with me and we are going right back to that very awful wizard। और मम्मी को बहुत गुस्सा आया और वो उससे पूछते कि तुम्हारी स्मेल किसने कन्वर्ट की? तो रॉजर स्कंक ने बताया कि उसकी स्मेल जो है विज़र्ड ने करी कन्वर्ट। और मम्मी को इतना गुस्सा आया कि वो उस ऑफुल स्मेल को चेंज कराने के लिए कहती है कि चलो अब हम विज़र्ड के पास चलते हैं। जो सैट अप, her hands dabbling in the air with genuine fright. But Daddy, then he said, about the other little animals run away. Her hands skittered off.
into the underbrush। और ये सुनकर एकदम से जो बहुत ही सरप्राइज़ होकर खड़ी हो जाती है, उसको जो नींद वैसे ही नहीं आ रही थी और अब जो थोड़ा बहुत उसने कंसंट्रेशन कम कर दिया था पापा की स्टोरी में, वो वापस आ गया कि ये क्या हो गया कहानी में ट्विस्ट, कि मम्मी को गुस्सा क्यों आया गुड स्मेल से। और बाकी एनिमल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है क्यों उसके दोस्त नहीं हो सकते, ये बात जो को समझ नहीं आई। बट डैडी देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे। अब वो उसको चिंता हो गई कि बाकी जो एनिमल्स हैं उसकी बैड स्मेल से दूर भाग जाएंगे, फिर से रॉजर स्कंक के कोई दोस्त नहीं रहेंगे। ऑल राइट ही सेड, बट मॉमी ऑल द अदर लिटिल animals run away, and she said, I don't care. You smelled the way a little skunk should have, and I am going to take you right back to that wizard. And she took an umbrella and went back with Roger Skunk and hit the wizard right over the head. और अब रॉजर स्कंक की मदर जो है, मॉमी जो है, वो रॉजर स्कंक को लेकर पहुंच जाती है विज़र्ड के पास अम्ब्रेला लेकर, और उस अम्ब्रेला से वो बहुत ज़ोर की विज़र्ड के सिर पर मारती है और उसे उसकी गुड स्मेल को वापस स्कंक की ओरिजिनल स्मेल में कन्वर्ट करने को कहती है। जो को बहुत गुस्सा आता है। नो, जो सेड एंड पुट हर हैंड out to touch his lips, yet even in her agitation and did not quite dare to stop the source of truth, inspiration came to her. Then the wizard hit on the head and did not change that little skunk bag. अब जो है उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और उसने अपने पापा के लिप्स पे फिंगर रख के कहा कि नहीं ऐसे मत बोलो कि उसकी जो है स्मेल को जो है वो वापस स्कंक की स्मेल में कर दें। और आगे से और स्टोरी जो है वो कहती है कि विज़र्ड को जो है उसने मना कर दिया और विज़र्ड ने जो है मम्मी के हेड पे वापस हिट किया और उस स्कंक की स्मेल नहीं चेंज की। जैक कहता है नो, he said, the wizard said okay, and Roger Skunk did not smell of roses anymore. He smelled very bad again. But the other little Joanna, it's daddy's story. अब जैक कहता है कि नहीं, विज़र्ड ने मम्मी की बात मानी और रॉजर स्कंक की जो स्मेल है वो रोजेस से हटाकर उसकी बैड स्मेल में कन्वर्ट कर दी। और जोआना जो है, जोआना उसका पूरा नाम है, और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ रही है कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है डैडी की ये स्टोरी कि क्यों उसकी जो है गुड स्मेल बैड स्मेल में कन्वर्ट हो रही है। और डैडी को भी गुस्सा आ रहा है कि डैडी को चाह रहे हैं कि वो उसकी स्टोरी को कंप्लीट करने दे और उसकी स्टोरी के जो थीम को समझे, जो वो समझाना चाह रहा है उसको। और हर ब्रॉड फेस looked at him, though sifted light astounded. This is what happened then. Roger Skunk and his mommy went home and they heard। और अब जो है स्टोरी का रियल एंड, जो कि हमेशा हर स्टोरी लाइन का एंड होता है कि विसल की साउंड आएगी, पापा बॉस्टन से वापस आएंगे और ये सब जो है अच्छा सफ़र खाएंगे। तो स्कंक एंड हिज मॉमी वेंट होम, दे हर्ड वू 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 एंड इट वॉज चू चू ट्रेन bringing Daddy Skunk home from Boston. And then they had lima beans, celery, liver, mashed potatoes and pio for dessert। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरनेशनल कंट्री का क्यूजीन है और ये सब डिशेस जो हैं वो सर्व थी एज अ डिलीशियस सपर। एंड व्हेन रॉजर स्कंक वाज इन बेड, मॉमी स्कंक came up and hugged him and said he smelled like her little baby skunk again, and she loved him very much। and that's the end of the story। और स्टोरी का बहुत ही ब्यूटीफुल एंड हुआ। मम्मी ने जो है रॉजर स्कंक को प्यार किया और उसे कहा कि अब तुम मेरे बच्चे के जैसे जो है स्मेल कर रहे हो, उसको हग किया और फिर इसी के साथ स्टोरी एंड हो गई। अब जो को ये स्टोरी का एंड बिल्कुल पसंद नहीं आया, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया कि क्यों जो स्मेल है वो रोज़ेस की बजाय बैड स्मेल हो गई और मम्मी भी खुश हो रही है, उल्टा मम्मी ने विज़र्ड को मारा और रॉजर ने भी एक्सेप्ट कर लिया वो स्मेल। बट डैडी व्हाट देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे। अब उसको चिंता हो रही थी कि जो रॉजर स्कंक के फ्रेंड्स हैं अब वो उससे दूर भाग गए या उसके साथ खेले। तो पापा बताते हैं नो,
because eventually they got used to the way he was and did not mind at all. और फिर पापा बताते हैं कि नहीं, उससे जो उसके दोस्त हैं वो दूर नहीं भागे, वो धीरे धीरे उसकी उस स्मेल के यूज टू हो गए और उनको फिर उसके बाद फ़र्क नहीं पड़ता था उसकी बैड स्मेल से, वो सब उसके साथ नॉर्मल ट्रीट करते थे और उसके साथ खेलते थे. व्हाट्स इवन शिलारी इन अ लिटिल वाइल, दैट वॉज स्टूपिड मॉमी. अब जो को जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं आया मॉमी का करेक्टर और मम्मी को बार बार स्टूपिड बोल रही है. इट वॉज नॉट, he said with rare emphasis, and believed from her expression that she realized he was defending his own mother to her or something as odd. और यहाँ पर जिस तरीके से वो जो कि हर बात को काट रहा था या उसको टोक रहा था, तो उसको कहीं ना कहीं लग रहा था जैसे कि वो अपनी मदर को डिफेंड कर रहा है. जैसे मम्मी हमेशा राइट होती हैं और मम्मी जो डिसीजन बच्चों के लिए लेती हैं या पेरेंट्स जो डिसीजन बच्चों के लिए लेते हैं वो अप्रोप्रिएट होता है. ये कहीं ना कहीं ये मैसेज जो है वो देना चाह रहा था जैक अपनी डॉटर को. और हमेशा जो है हैप्पी एंडिंग नहीं होती है और हमें किसी और के लिए अपनी पर्सनालिटी को चेंज नहीं करना चाहिए. ये मैसेज भी वो जो को देना चाह रहा था, जो कि उसने स्टोरी के थ्रू दिया भी, बट जो इस बात को समझने को तैयार नहीं थी अभी. और कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी मदर को डिफेंड कर रहा है कि जो उसकी मदर ने उसको उसकी अपब्रिंगिंग की है और जिस तरीके से उसके अंदर जो है वैल्यूज़ और वर्चूज़ डाली हैं वो बिल्कुल सही हैं. नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिलो एंड हैव अ गुड लॉन्ग नैप. और वो जो को डांटता है और उसे बोलता है कि चुपचाप अब तुम सो जाओ. ही एडजस्टेड द शेड सो दैट so not even a crack of day showed, and tiptoed to the door in the pretense that she was already asleep. But when he turned, he was crouching on top of the covers and staring at him. He get the under the covers and fall fast asleep. Bobby is asleep. और वो सुलाने की कोशिश कर रहा है जो को, वो बिल्कुल नहीं सो रही है. उसको पिल्लो पे भी लेटा दिया, उसके ऊपर ब्लैंकेट भी डाल दिया, बट वो कहीं ना कहीं चोरी चोरी वो आंखें खोल रही है और वो देख रही है और वो उसकी अभी भी तसल्ली नहीं हुई है क्योंकि वो स्टोरी के एंड से सेटिस्फाई नहीं है. और जैक उसे बोल रहा है कि तुम सो जाओ, जैसे तुम्हारा भाई सो गया है तुम्हें भी सो जाना चाहिए. She stood up and bounced gingerly on the springs. Daddy, what tomorrow? I want you to tell me the story that that wizard took that magic wand and hit the mommy. Her plump arms chopped forcefully right over the head. अब वो उसको इतना गुस्सा आ रहा है रॉजर की मम्मी पर. वो कहती है कि कल पापा मुझे तुम दोबारा से स्टोरी सुनाओगे और उस स्टोरी में जो है विज़र्ड अपने मैजिक वॉन्ड से जो है मम्मी के सिर पे मारेगा, उसके आर्म्स भी चॉप कर देगा और उसके हेड पे जो है बहुत ज़ोर सी अपना जो है मैजिकल वॉन्ड मारेगा. नो, दैट्स नॉट द स्टोरी. द पॉइंट इज़ दैट द लिटिल skunk loved his mommy more than he loved all the other little animals, and she knew what was right. अब जैक को भी गुस्सा आ जाता है. वो कहता है कि नहीं, स्टोरी का एंड बिल्कुल ठीक है. और इसमें ये लेसन शो करता है कि रॉजर स्कंक को अपनी मम्मी से ज़्यादा प्यार था उन क्रीचर से, और उसको पता था कि जो उसकी मम्मी कर रही है उसके लिए वो बिल्कुल ठीक कर रही है, वो बिल्कुल सही डिसीजन है. और वो अपनी मम्मी के डिसीजन के साथ जो है वो बिल्कुल आर्ग्यू नहीं किया और उसने अपनी बैड स्मेल को वापस एक्सेप्ट कर लिया. नो, टुमारो यू से ही हिट दैट मॉमी, डू इट. She kicked her legs up and sat down on the bed with a great heave and complained of springs as she had done hundreds of times before, except that this time she did not laugh. Say it, daddy. और वो फिर भी नहीं मान रही है और डैडी को कह रही है कि नहीं, आप मम्मी को जो है वो विज़र्ड मारेगा और उसकी जो है बैड स्मेल वापस रोजेज़ में कन्वर्ट करेगा और उसको मारेगा. मैं और कंप्लेन करना शुरू कर देती है जैसे कि हमेशा की उसकी आदत है, बट कंप्लेन करते करते कभी कभी वो हंस देती है. बट इस बार तो वो हंसी कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है और वो फोर्स कर रही है अपने पापा को कि आप मेरे को कल ये स्टोरी सुनाओगे जिसमें विज़र्ड जो है वो मम्मी को मारेगा, क्योंकि उसको मम्मी का ये बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आया. वेल, वील सी. नाउ एट लीस्ट हैव अ रेस्ट, स्टे ऑन बेड एंड यू आर अ गुड गर्ल. अब वो जैक जो है वो जो को फिर से सुलाने की कोशिश कर रहा है. उसको कह रहा है अच्छा कल देखेंगे, अभी तुम चुपचाप सो जाओ, तुम अच्छी लड़की हो. He closed the door and went downstairs. Claire had spread the newspapers and opened the paint can, and wearing an old shirt of his
on top of her maternity smock, was stroking the chair rail with a dipped brush. Above him, footsteps vibrated and he called, "Joanna, shall I come up there and spank you?" The footsteps hesitated. अब जो है वो धीरे धीरे नीचे सीढ़ियाँ उतर रहा है, देख रहा है कि क्लेयर ने न्यूज़पेपर सब जगह बिछाए हुए हैं और वो पेंट कैंस भी ओपन हैं और उसने ओल्ड शर्ट पहनी हुई है और वो पेंट कर रही है फर्नीचर को। और कहीं ना कहीं जब वो सीढ़ियाँ उतर रहा है तो उसको जोआना के चलने की आवाज़ आती है और अब इस बार वो बहुत गुस्से से बोलता है कि क्या तुम मार खाओगी, अब के सो जाओगी चुपचाप। दैट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी, क्लेयर सेड। और क्लेयर एकदम से जैक को सीढ़ियाँ उतरते हुए देख कर बोलती है कि बड़ी लंबी स्टोरी थी। द पुअर किड, ही आंसर्ड। और जैक ने कहा कि बेचारी बच्ची, क्योंकि उसको स्टोरी का पूरा जो है सिचुएशन पता था, जो कि क्लेयर को नहीं पता था कि ऊपर क्या हुआ। एंड विद अटर वियरीनेस वॉच्ड हिज वाइफ लेबर। और बहुत ही ज़्यादा ध्यान से और बहुत ही ज़्यादा अनमने और थके हुए चेहरे से अपनी वाइफ को जो है उसने काम करता हुआ देखा। द वुड वर्क, अ केज ऑफ मोल्डिंग्स एंड रेल्स एंड बेस बोर्ड्स ऑल अराउंड देम। बहुत सारा वुड वर्क है, केज है, बेस बोर्ड है, वो सब जगह फैला हुआ है और वो क्लेयर उन्हें पेंट करने की कोशिश कर रही है। वॉज हाफ ओल्ड टैन एंड हाफ न्यू आइवरी एंड ही फेल्ट कॉट एंड एन अगली मिडल पोजीशन। और अपने आप को इस टाइम पे उसने बहुत ही अगली मिडल पोजीशन में पाया, क्योंकि ऊपर जब वो एक्चुअली में जो स्टोरी नरेशन था वो जो को सुलाना था, वो भी काम पूरा अच्छे से नहीं कर पाया क्योंकि जो सोई नहीं थी और स्टोरी बहुत ही लंबी हो गई थी। और उसकी वाइफ भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा उससे नाराज़ दिख रही थी क्योंकि उसने एकदम से ही उसको सीढ़ियाँ उतरते ही पूछ लिया था कि बड़ी लंबी स्टोरी थी। और इस मोमेंट पे वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अगली मिडल पोजीशन में फाइंड कर रहा था। एंड दो ही एज वेल फेल्ट हिज वाइफ्स प्रेजेंस इन द केज विद हिम। और उसको ऐसे लगा कि उसको और उसकी वाइफ को किसी पिंजरे में बंद कर दिया गया है। एंड ही डिड नॉट वांट टू स्पीक विद हर, वर्क विद हर, टच हर, एनीथिंग। और वो कोई भी तरीके का वर्बल या फिज़िकल जो टच है, ना ही वर्बल कोई इंटरेक्शन है, वो उस मोमेंट पे अपनी वाइफ के साथ रखना चाहता था क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा स्टोरी नरेशन सेशन से टायर्ड हो चुका था। और इसके साथ ही हमारी ये स्टोरी शुड विजिट हिट मॉमी ख़त्म होती है। एंड आई हैव क्लियरली हाईलाइटेड द थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टोरी। एंड if you have any doubts, you can re-listen to this video and solve the question answers and the worksheet which I am going to provide along with this chapter.